नासिर शुरू कर मंसर दें? स्टार्ट कर लें आप. Rakala, you can give the introduction of the presenters, then we can start. ठीक, ओके ओके. Sir, first of all, I am extremely thankful to the Nasir for coming at such a gesture when Sir Firoz Haider, who was very kind enough to continue this session since long. So this is courtesy to Nasir Mahmood, who made us to be joining today because of him. And let me introduce the our speaker today. Our speaker is Dr. Ali Ahmed. He's an assistant professor of electrical engineering at UIT Usman Institute of Technology, Karachi. He obtained BE degree in electronics engineering from the NED University of Engineering and Technology, Karachi, and he obtained his PhD and MS ECE from the University of South Korea. He is also team leader of Microelectronics Research Lab in Usman Institute of Technology. Two RISC-V based Pakistani first tape out was done under his supervision. His current broader research interests are in computer architecture, IoT, and information security. He is especially interested in micro architecture with a major current focus on memory and the storage system. Although he would be, sir, deliberating more on the prospect potential and the ecosystem in Pakistan of the RISC-V, where is the second, although he would be the first speaker, is the Zishan. Zishan Rafiq is an undergrad student of computer engineering from Osman Institute of Technology. He is Pakistan's first RISC-V ambassador, and currently he is a research intern at Microelectronics Research Laboratory UIT chapter. He is working on RISC-V since June 2019. He was co-designer of the Ghazi SOC project, the Pakistan first RISC-V based tape out, and still working as the hardware design and verification intern at Microelectronics Research Lab. His aim is to spread the awareness of the RISC-V across different universities in Pakistan. He is also willing to share training resources with the RISC-V enthusiasts and willing to arrange virtual or physical webinars, workshops regarding the RISC-V. Now hand over to Nasir for further moderating and continuing. Yeah, I think Zishan can start his presentation. Yes, sir. Thank you so much for introduction. And before we start, let me quickly give an overview of a moderator. I'll be just a facilitator, basically. And I think the questions you can always put on chat or you can raise hand, and we'll go, systematically answering those questions. So hopefully that session will be very informal, and we can discuss things in detail. Over to Zishan, please, you can start. Yes, thank you so much, Sir Nasir and Manzar for introduction. So basically अगर हम लोग बात करें RISC-V microprocessor reality potential and prospective ecosystem in पाकिस्तान की, so first of all RISC-V है क्या और क्यों है और हम लोग उसको क्यों अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. बेसिकली अगर हम देखें हमारे हाथ में जो सेल फोन्स हैं, बेसिकली जो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड अस यूजेस द माइक्रोचिप, जो एक बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जिसे आप कहते हैं या फिर आप प्रोसेसर जिसे कह सकते हैं. तो हर एक चिप एक बेसिकली पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के ऊपर एक लाई करती है. तो जैसे कि अगर हम कोई घर बनाने जा रहे हैं तो हम उसका पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, देन वी मूव टू द डिज़ाइनिंग साइड. सो इसी तरह किसी प्रोसेसर को डिज़ाइन करने से पहले हम उसको पहले आर्किटेक्चर वहाँ तक होना लाजमी होता है. तो लाइकवाइज RISC-V इज़ आर्किटेक्चर एंड जो कि हम एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम यूज़ करके प्रोसेसर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन आउटलाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स प्रोसेसर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम डिस्कस करेंगे. देन वी मूव टुवर्ड
areas and context to Pakistan. Then we move toward RISC-V achievements worldwide, and the next step will be the how we approach open source processor SoC development initiative in Oman Institute of Technology, and the next one is how we all can collaborate to tap semiconductor industry market in Pakistan. So first of all, why open source processor? So there's a Moore's law which states that कि हर 2 साल के बाद आपके ट्रांजिस्टर डबल होते रहेंगे. इट मीन्स कि जब ट्रांजिस्टर डबल होते जा रहे हैं आपके, तो आपके पास रिसोर्सेज आप जब आपके ट्रांजिस्टर डबल होते जा रहे हैं, तो अब आप क्या होगे, इंटेल और जो लाइक अदर जो जाइंट्स थे जो कि आपकी चिप्स बनाते थे, लाइक इंटेल हो गया, आर्म हो गया, अब उनके पास डिज़ाइन तक रुक चुके हैं. अब वो उस लॉ के ऊपर मजीद काम नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई एक ओपन सोर्स हमारे पास एक ISA आया. ISA मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसको RISC-V का नाम दिया गया, जो कि बैक इन 2000 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था ओपन रिस्क. देन उसको ओपन स्पार्क कहा गया 2006 में. देन 2010 के अंदर यूसी बर्कले के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, जो कि PhD थी यूनिवर्सिटी और किस चीज़ के हेड थे, प्रोफेसर थे, और वो ओपन सोर्स हो गई. देन लोगों ने इसके ऊपर उस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया. एंड सो अच्छा, ओपन सोर्स ISA का मतलब यह है कि एक ऐसा ISA जिसको हर कोई फ्रीली यूज़ कर सकता है. अभी इससे पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पेन पॉइंट था पूरी दुनिया में, कि जो कि प्रोसेसर बना सकते हैं, जैसे कि इंटेल है, आर्म है, AMD है, तो प्रोसेसर बनाने के लिए आर्किटेक्चर जो था वो सिर्फ उन्हीं के पास था. यानी कि जस्ट दे कैन डिज़ाइन द प्रोसेसर. बाकी अगर कोई दुनिया में कोई भी डिज़ाइन करना चाहता था, तो वो उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करेगा तो उसकी लॉयल्टी पे करेगा, यानी कि उसकी कुछ पेमेंट करेगा, देन ही कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर ISA आर्किटेक्चर. लेकिन RISC-V ने क्या किया, RISC-V ने सबके लिए ओपन कर दिया. ये ISA ऐसा है कि कोई भी बच्चा या कोई भी फैकल्टी या फिर कोई भी इंडिविजुअल अपने बैठ के एक जैसे उसके पास एक लैपटॉप हो, उसके पास इंटरनेट स्टेबल हो, he can make and create his own processor on her house. So first of all, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो चीज़ बनी थी वो था रॉकेट शिप जनरेटर. यानी कि बैक इन 2010 जिस टाइम ये RISC-V के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था और इनकी PhD स्टार्ट हुई थी, तो इनका जो फर्स्ट थीसिस थी, यानी कि इन्होंने जो पहली चीज़ बनाई थी RISC-V के ऊपर, वो बनाई थी रॉकेट शिप, जो कि इन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट की, बल्कि जिसका नाम था चीज़ल. अब चीज़ल को इन्वेंट क्यों किया गया और RISC-V को साथ लेकर क्यों चला गया? अब चीज़ल इन्वेंट करने की इनकी वजह ये थी लैंग्वेज की कि लाइक हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियर्स थे जो कि RTL जैसे कि सिस्टम वेरिलोग हो गया, VHDL ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि उनको हार्डवेयर की इतनी नॉलेज नहीं थी. सो चीज़ल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्काला को यूज़ करती है. स्काला इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फंक्शनल लैंग्वेज, जिसकी एक लाइब्रेरी है चीज़ल, और इसको यूज़ करके इन्होंने एक रॉकेट चिप बनाई. अब रॉकेट चिप जनरेटर क्या है? रॉकेट चिप क्या करता है, जस्ट यू हैव टू इनपुट द कॉन्फ़िगरेशन. आपको कॉन्फ़िगरेशन इनपुट करनी है उसके अंदर, और वो रॉकेट चिप जनरेटर आपको चिप बना के देगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 32 बिट का एक प्रोसेसर चाहिए, जिसकी स्पेसिफिकेशन में मुझे फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट चाहिए, मुझे मल्टीप्लिकेशन यूनिट चाहिए, और एसेट्रा एसेट्रा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप उसको पास करेंगे और इन रिजल्ट आपको वो वैसा प्रोसेसर बना के दे देगा. लेकिन इसमें भी एक मसला था. अब इन्होंने रॉकेट चिप जनरेटर तो बना दिया, वो सिर्फ था एजुकेशन पर्पस के लिए. जब PhD इनकी खत्म हुई, उस रॉकेट चिप जनरेटर की इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी. यानी कि जब उनकी PhD तो खत्म हुई, होने के बाद जब इसको इतना फेम मिला RISC-V को, तो तब लोगों ने देखा कि हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं रॉकेट चिप जनरेटर को, लेकिन इसको इसके अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग इसको ज़्यादा समझें, तो उसके लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. सो ये इसका एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से एक वन थिंग मोर के इसी से बर्कले आउट ऑफ ऑर्डर मशीन के बूम जिसका नाम है, वो भी इसी से जनरेट हुई है, इसी का पार्ट है. सो चीज़ल एक बार दोबारा आते हैं चीज़ल के ऊपर कि चीज़ल ने क्यों यूज़ की थी. तो बेसिकली चीज़ल एक अगर आप चीज़ल का एक प्रोग्राम है जो कि आप स्काला की लाइब्रेरी से पास करेंगे, देन आपको 3
थ्री प्रोडक्ट्स देगा आपको। एक है C++ का कोड, जो कि आप सॉफ्टवेयर C++ कंपाइलर से आप उसकी सॉफ्टवेयर सिमुलेशन कर सकते हैं। देन आपको मिलेगा FPGA वेरिलो का कोड, यानी कि वेरिलो की कोड को आप डायरेक्टली FPGA के ऊपर पोर्ट करके आप अपना प्रोग्राम चेक कर सकते हैं कि आया ये प्रोग्राम सही था या मेरे पास जो मैंने कोड बनाई है ये सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इसकी प्रॉपर फंक्शनलिटी चेक कर सकते हैं एमुलेशन के लिए। देन थर्ड वन इज द एसिक पार्ट, जो कि एसिक से पास करके आप डायरेक्ट उसका GDS बना सकते हैं। सो अगर हम RISC-V को देखें, सो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं और बिग जायंट्स हैं बेसिकली जिन्होंने RISC-V को अडॉप्ट कर लिया है। इवन के IBM ने इटसेल्फ RISC-V को अडॉप्ट किया और RISC-V के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट किया है। बार्सिलोना कंप्यूटिंग सेंटर है, एंड माइक्रो है, बहुत सारी रेड हैट है हमारे पास, Xilinx है इवन। देन इसमें हम भी कहीं आते हैं, जो IT भी एक वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर ऑफ RISC-V। सो फैसिनेटिंग एरिया इन पाकिस्तान। सो अब किन किन एरियाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो $500 बिलियन की ग्लोबली ये इंडस्ट्री है, और आई थिंक RISC-V के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम काम हो रहा है कि वी हैव क्रिएट द इकोसिस्टम, और बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इसकी इकोसिस्टम क्रिएट करें। इसके अंदर हम लोग RISC-V की हम लोग हार्डवेयर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, हम लोग कोड की वेरिफिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। देन वी कैन वर्क ऑन डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स लाइक किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का हो सकता है। हम इसके अंदर एक्सेलेरेटर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग या AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आपने एक्सेलेरेटर इसमें लगा दिया अपने कोड के साथ IP करें। देन आपके पास आप लो पावर के ऊपर भी जा सकते हैं कि अगर आपको लो एंड बनाने हैं या फिर तो माइक्रो कंट्रोलर टाइप बनाने हैं तो IoT पर्पस के लिए उस साइड पे भी हम जा सकते हैं। देन हम अगर थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करें जो डेटा ड्रिवन आर्किटेक्चर्स के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस सबसे जाने से पहले हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। तो अगर देखा जाए कि RISC-V कैसे इवॉल्व कर रहा है, RISC-V कैसे इवॉल्व कर रहा है, आप सब जैसे फैमिलियर होंगे ESP32, जो कि बहुत फेमस एक चिप थी IoT के पर्पस से, IoT के लिहाज से। तो वो टोटली शिफ्ट हो चुकी है RISC-V के ऊपर। अब RISC-V के ऊपर इसका एक तो दैट्स इट वाज बिग न्यूज़ कि पूरा आर्किटेक्चर इन्होंने था RISC-V के ऊपर लेके आ गए, और ये चिप अभी जो है RISC-V वर्जन भी इसका अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी RISC-V इवॉल्व करता जा रहा है, दुनिया से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूशन आती जा रही है वर्ल्ड वाइड। सो जीशान, अच्छा थोड़ी कंट्रीब्यूशन सी से हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव रखने के लिए क्वेश्चन आता है तो people can open the mic and ask question. So Saif was asking some questions. Saif, please go ahead and put your question. सर मेरा क्वेश्चन था कि आर्म के जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की उनकी चिप्स जो होती है सर, वो भी तो RISC का आर्किटेक्चर यूज करती हैं, तो उनका जो ISA होगा, इंस्ट्रक्शन सेट होगा, वो RISC-V के सिमिलर होगा या वो डिफरेंट RISC का यूज करते हैं? वो RISC-3 का आर्किटेक्चर यूज करें या RISC-2 का? देखिए RISC और RISC-V में डिफरेंस है। जो RISC है वो बेसिकली है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि RISC और CISC देयर आर टू टाइप्स। CISC जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और RISC के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो जाती है। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो आम और जो लाइक अदर जो RISC यूज़ कर रहे हैं वो भी RISC यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो RISC-V यूज़ कर रहे हैं, वो इससे प्रीवियस वर्जन में जो भी RISC होंगे उनमें यूज़ कर रहे हैं, और दे आर नॉट ओपन सोर्स। RISC-V इज द ओपन सोर्स जिसकी इतनी फेम मिल रही है और जिसकी दुनिया इतना काम कर रही है। आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिए। Can I ask a question? यस यस। Okay. My name is Slaudi. अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि रिस्क और सिस्क कभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वी अंडरस्टैंड रिस्क इज रिड्यूस सेट इंस्ट्रक्शंस की नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, जबकि सिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होती हैं. So by nature, can we conclude that risk is going to be slower because एक ही काम को अंजाम देने के लिए हमें multiple instructions execute करना पड़ेंगी, whereas same job can be done on CISC platform using just one instruction. बिल्कुल ऐसा ही है कि हाँ, जैसे कि हमारे पास अगर इंटेल में बात करें
तो हमारे पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि RISC-V की 3-4 इंस्ट्रक्शंस के बराबर हैं, लेकिन अगर आप उसका जब आपके पास इंस्ट्रक्शन ऐसा काम कर रही है तो उसी का अगर आप बैकफॉल देखेंगे उसका आप हार्डवेयर बढ़ रहा है उसका, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से वो फ्यूज मल्टीप्लिकेशन ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। अब उसका हार्डवेयर जो आपके पास इंटेल के अंदर होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अगर फ्यूज मल्टीप्लिकेशन ऐड की इंस्ट्रक्शन को हम लेट्स से अगर हम फॉर द एग्जांपल हम लोग रिस्क में बात करें कि इसको ब्रेक कर दीजिए कुछ पार्ट्स में, तो अब उस कुछ पार्ट्स में ब्रेक करने का मकसद क्या हो गया, अब हमारा हार्डवेयर जो है वो लेस छोटा हो गया और कम यूटिलाइज हो रहा है। मतलब ये है कि अब इसकी एनर्जी भी कम हो गया, एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया, एरिया एफिशिएंट भी हो गया। और दूसरी बात ये है कि RISC-V जो है वो बेसिकली मॉड्यूलर आईएस पे है। मतलब ऐसा एक बंदा है, एक बंदा जो ये चाह रहा है कि मैं इसके अंदर ये एक्सटेंशंस ऐड करना चाहता हूँ, तो वो वही एक्सटेंशन इसके अंदर ऐड करेगा। अब ये नहीं होगा कि मैं इसके अंदर एक मूव की इंस्ट्रक्शन ऐड कर दी, मूव की इंस्ट्रक्शन डाल दी मैंने, अब वो मूव की इंस्ट्रक्शन के पीछे इतना बड़ा हार्डवेयर बन रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। तो वो सिंपल 2 या 3 इंस्ट्रक्शन से उसका 2 या 3 इंस्ट्रक्शन से मूव का काम ले सकता है। ओके So, क्वेश्चन। सो अगर हम लोग जाएँ RISC-V की कंट्रीब्यूशन में, तो GPU एक है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, कंट्रीब्यूशन है, बल्कि अभी ये लॉन्च हुआ है RISC-V का, और ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, ये एक को प्रोसेसर होता है आपके प्रोसेसर के साथ, जो कि आपके प्रोसेसर को हेल्प करता है कंप्यूटिंग के अंदर। लाइक आपको बस बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है जिसका आपके प्रोसेसर को मल्टीपल साइकिल्स लग जाएंगे, इनके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स लग जाएंगे उसको कैलकुलेशन करने में। लेकिन GPU क्या करता है, उन्हीं कैलकुलेशन को आसान कर देता है और आपके हेल्प करता है आपके, और ये कैलकुलेशन आपकी हेल्प करता है। लाइकवाइज इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड सो सेकंड अचीवमेंट इज दैट कि एंड्रॉयड 10 जो है वो RISC-V पे पोर्ट हो चुका है। यानी कि एक इंडस्ट्री एक चीज़ तो हमने देखी कि प्रोसेसर्स के साथ को प्रोसेसर्स भी आ गए हैं मार्केट के अंदर। सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास एंड्रॉयड भी पोर्ट हो गए, यानी कि एंड्रॉयड वाली जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी मोबाइल फोन्स की, वो भी अब RISC-V में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा तो जी, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जी जी मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये आप GPU जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए यूज हो सकता है? सर GPU डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। yes it is sir we are using it हाँ, it is सो मेरे ख्याल एंड्रॉयड से ये तो नॉर्मली वेक्टर प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेसिंग में ज़्यादा इफेक्टिव है। कैन वी यूज इट फॉर मतलब जनरल एप्लीकेशंस? यस सर, आप यूज़ कर सकते हैं। HPC आप यूज़ कर सकते हैं, OpenCL अगर आप यूज़ करें ना, तो आप किसी भी ग्राफिक कार्ड के ऊपर आप HPC यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। in fact sir there are so many applications जो process intensive applications होती हैं they are using GPU in fact they utilize heavily on GPU चलो ठीक थैंक हो यू। गया, थैंक यू। सो अगर हम RISC-V की डेवलपमेंट्स को देखें डेवलपमेंट बोर्ड्स में, तो वन ऑफ द बोर्ड इज Hi-5 1 रेवोल्यूशन B। तो ये बेसिकली Sci-5 का बोर्ड है फॉर द डेवलपमेंट एंड IoT पर्पस, आप एजुकेशन पर्पस में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और है Beagle B, जो कि Beagle बोर्ड की तरफ से है, और ये लिनक्स कैपेबल बोर्ड है, यानी कि आप इसके ऊपर लिनक्स भी बूट कर सकते हैं। Then third market is general purpose processors. तो जनरल पर्पस PCs यानी पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर भी इन्होंने RISC-V में मार्केट टैप कर चुके हैं, और Sci-5 ने जो भी बोर्ड निकाला है वो Hi-5 अनमैच्ड निकाला है, जिसके अंदर मल्टीपल CPUs हैं जो कि आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये देखें कैसे हमारे पास रेवोल्यूशन होता गया कि फर्स्ट चिप कन्वर्ट हुई, देन GPUs आए, देन एंड्रॉयड पोर्ट हुआ, मल्टीपल बोर्ड्स थे हमारे पास, मल्टीपल बोर्ड्स के बाद आपके PC, यानी कि एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड द RISC-V। तो अगर हम लोग इसकी थोड़ी सॉफ्टवेयर साइड पे बात करें, तो सॉफ्टवेयर साइड पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, Sci-5 ने प्रोवाइड की हुई है। Sci-5 जैसे कि फ्रीडम ESDK है, फ्रीडम USDK फॉर द this one is for the basic boards and this one is for the PCs. Then पहले देखा जाए तो इससे पहले हमारे पास ओपन सोर्स टूल्स नहीं थे
ओपन सोर्स टूल्स तभी आते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। तो RISC-V जब इवॉल्व हुआ, RISC-V के इवॉल्व होने के बाद हमारे पास ऐसे टूल्स आए, यानी कि जब व्हेन यू हैव द RTL फाइल, आप उसको टेप आउट करना चाहते हैं, GDS तक ले जाना चाहते हैं, आपके पास एक टूल है OpenLens, जिसको आप यूज़ करके एक RTL से GDS तक आप रेडी कर सकते हैं। लाइकवाइज यू कैन सी हियर एक पूरी टूल चेन है जिसके अंदर OpenRoad, Geosys, मैजिक और ये डिफरेंट टूल्स एडेड हैं, और इसको आप यूज़ करके आप अपने पास यू कैन क्रिएट द GDS फाइल एंड सेंड इट टू द फाउंड्री फॉर फैब्रिकेशन। सो अगर हम लोग कुछ मेंबर्स की बात करें, हमारे पास काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि अलीबाबा है, एंजीज हैं, और अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर इनमें से जो मेंबर्स हैं, एंड दीज आर फ्रॉम चाइना, सो यू कैन से दैट चाइना इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ RISC-V। सो RISC-V इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो लैम्प्रोमेलन और मर्ल हैं, जो कि बेसिकली नाउ मेजर जो हैं RISC-V कंट्रीब्यूटर्स हैं। लैम्प्रोमेलन बेसिकली दे हायर द फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो कि ग्रेजुएट्स को लेते हैं और उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग देके प्रोसेसर वेरिफिकेशन के ऊपर बेसिकली वो काम कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ द मर्ल के अंदर बेसिकली ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टू टेप आउट थे वो मर्ल की तरफ से थे पाकिस्तान के, एंड देन मर्ल के जो कुछ ब्रांचेस हैं, जो कि मेन ब्रांच हेडक्वार्टर जो है उनका UIT में है, देन DHS सुफा में भी है, और एक लाहौर में भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी कोलैबोरेशन करना चाहती है तो यू कैन जॉइन अस, वी आर हैप्पी टू रिसीव। सो सर अली, ओवर टू यू। थैंक यू जिशान, थैंक यू, नाइस प्रेजेंटेशन। किसी का कोई सवाल है या फिर मैं स्टार्ट करूं? Should I start? चलिए आप स्टार्ट करें, क्वेश्चन हम बाद में पूछेंगे। हम तो नहीं पूछेंगे, बाकी पूछेंगे। जी। तो जिशान, मैं नेक्स्ट कहूँ तो आप इसको ना चेंज कर देना, बैक बेटा, बैक पे आओ, बैक करो। सो मैं जरा डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में क्या एफर्ट और क्या कंट्रीब्यूशन है जो RISC-V की हो रही है, राइट? सो नेक्स्ट प्लीज। So basically, it's the brainchild of Dr. Rumi. Dr. Rumi is an adjunct professor और faculty है हमारे Smart Institute of Technology की. So he was also from NED University और आजकल वो US में है. So उनका विजन था कि छोटी-छोटी लेबोरेटरीज होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि सिलिकॉन के इकोसिस्टम पे काम करे. So he approached us and actually I am looking on RISC-V. So मैंने उसको yes कहा, and then we started at a Smart Institute of Technology. So our headquarter of Merl is basically Smart Institute of Technology. Then DHS सुफा में इसकी एक ब्रांच है, बेसिकली एक इसका फैक्ट है और एक लाहौर में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी इन प्रोग्रेस है जिनसे हम बात चल रही है हमारी. सो वी साइन एन MOU और उसके बाद बेसिकली हम जो है वो उसको मर्ल का चैप्टर में बना देते हैं, राइट? So Merl is basically not for profit an organization जो basically mostly donation पे और basically यूनिवर्सिटी है वो उस पे help करती है, right? So we focused on Buraq course, firstly IoT because of a small microprocessor footprint, और SOCs पे हमने काम करना स्टार्ट किया from the very beginning using Andrew Waterman Thesis, who is one of the founder of RISC-V, right? बट आगे करना दीजिए. So because we are undergraduate university, तो हम 3rd और 5th सेमेस्टर्स के बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लेते हैं, और उनको समर प्रोग्राम में बेसिकली एक समर प्रोग्राम होता है जिसका कोई क्रेडिट आवर्स नहीं होता, जिसकी कोई मार्क्स नहीं होते. बस हम ये देखते हैं कि बच्चे में तड़प है सीखने की, काम करना चाहता है, then we take them and we start teaching them digital logic design, computer architecture and things like this, right? So ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को 2nd से 3rd से 5th सेमेस्टर तक के बच्चे हम इसमें लेते हैं. तो RB32I जो है वो बिल्कुल बहुत छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें 47 इंस्ट्रक्शंस होती हैं. 47 इंस्ट्रक्शंस का वो हार्डवेयर होता है, बेसिकली उसकी स्पेक होती है. तो उसको हम यूज करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वो बनाना होता है अपने हाथ से खुद 3rd सेमेस्टर, राइट? हम 2 किस्म की लैंग्वेजेस यूज करते हैं इसको बनाने के लिए. एक लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है चिजल. चिजल का मतलब है कंस्ट्रक्टिंग हार्डवेयर
in Scala embedded language. So Scala इसकी जो बेसिकली बेस है उसको हम यूज करते हैं. ये अलाउ करता है कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको वेरिलॉग नहीं आती या वेरिलॉग समझने में मुश्किल होती है या वेरिलॉग उनके लिए एक मुश्किल काम है, सो वो चिजल में इसको यूज करते हैं. चिजल के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से एक फायदा ये है कि जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में बहुत सारी लाइब्रेरीज बना के उसको रीयूज कर लेते हैं, जिसको हम अजाइल मेथोडोलॉजी कहते हैं, अजाइल डेवलपमेंट कहते हैं, चिजल के थ्रू आप ये कर सकते हैं. यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक बस बनाई है, AXI बस बनाई है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटराइज्ड ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन आपको देती है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड कि अगर आप सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम आ जाए, हार्डवेयर में ले आए, तो आपका जो हार्डवेयर डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो जाती है. और उसके आपको अभी मिसाल मिलेगी आगे जाके वो कैसे फास्ट हो जाती है. सो बेसिकली agile methodology in hardware is basically chisel, or agar if you want to construct a hardware at the speed of software, chisel is the thing which you should work on, right? Zishan आगे कीजिएगा. So 90% of our team is basically comprised of undergraduate engineering students and fresh graduates. So ये बच्चे हैं, इनका इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ये वो काम कर रहा है, राइट. आगे चलिए. सो हमने एक UIT समर करिकुलम बनाया, इसको प्रोसेस डिजाइन को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड, ठीक है जी. उसमें बेसिकली 4 समर प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं बच्चों को तोड़ें, बट ये टाइम फोकस नहीं होता. हम बेसिकली बच्चों को कुछ हम बेंचमार्क्स देते हैं या हम चेक पॉइंट्स देते हैं. इफ दे डू अर्ली दे कैन प्रमोट इट टू द नेक्स्ट टास्क, राइट. सो हम बच्चों को सेकंड सेमेस्टर से उठाते हैं जिनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आती है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ी होती है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन हम उनको पढ़ाते हैं, राइट. तो उस समर प्रोग्राम के अंदर हम ये सारी चीजें बच्चों को कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमारे बच्चों के लिए होता है, और हम चाहते हैं कि वो अर्ली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चीजों को सीखें ताकि रेलेवेंट हो उनका काम जो है वो इंडस्ट्री के लिए. सो दिस इज व्हाट वी डू. जिशान आगे चलिएगा. Dr. Ali Saab, this is Salim Rahman. May I interrupt for a short while? आपने बड़ा rightly mention किया कि you pick up young students second semester and give them exposure to this high-tech industrial level work. But my question is, why can't they be graded on it? Because this is definitely a very good input from your people, and if you interact with the universities concerned and have them graded on the work that they do over there, won't it help? सर बिल्कुल, मैं आपको इस बात को समझा देता हूँ. इसमें जो करने का मकसद है वो बेसिकली ये है कि जब वो ग्रेजुएट हों तो वो, जैसे RISC-V आपको पता है इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो जब वो ग्रेजुएट हों तो उन पर वो स्किल सेट भी हो और उनकी कंट्रीब्यूशन दुनिया को पता भी हो. जैसे कि ये हमारे साथ अभी जो जिशान थे जो अभी बेसिकली मुझसे पहले प्रेजेंट कर रहे थे, ही इज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ 7th सेमेस्टर इन उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये पाकिस्तान का पहला RISC-V का एम्बेसडर है. सो यस, इनको कवरेज भी मिलती है और ये फिर आगे भी जाते हैं. सो हमारा काम बेसिकली यही है, क्रिएट एन इकोसिस्टम इन पाकिस्तान. तो बेसिकली उसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम UIT, और हमारे UIT की जो यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर साहब ने, पूरे लोगों ने, और डॉक्टर रूमी ने जिनका बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है, सब ने हेल्प की, और देन एंड वी डिलीवर. आपको मैं आगे दिखाता हूँ वो कैसे हमने डिलीवर किया, राइट. Excellent. Please continue. Okay. थैंक यू. सो समर 1 में बेसिकली लॉजिस्टिक इसके लिए कुछ नहीं चाहिए. यू शुड हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप जिसमें लिनक्स चल रही हो, Ubuntu, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. 4 वीक का कोर्स होता है, और आउटकम होता है कि आप सिंगल साइकिल RB32i कोर बना रहे हैं. सिंगल साइकिल का मतलब बेसिकली ये है कि एक साइकिल में वो अपनी साइकिल में पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट. ये सबसे आसान कोर होती है जो हम किसी बच्चे को देते हैं. तो बिफोर गोइंग टू द लैंग्वेजेस, हम उसको बेसिकली आर्किटेक्चर की पहले चीजें सिखाते हैं, एंड देन वी गो फॉर द लैंग्वेजेस. सो बेसिकली कौन से टूल बच्चे लर्न कर पाते हैं? स्काला बिल्ड टूल, स्काला बेसिक्स, चिजल, वेरिलेटर, ये ओपन सोर्स जो है वो बेसिकली सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है. GTK वेव, लॉजिस्टिक, RB असेंबली और वीनस ISS सिमुलेटर को यूज करते हैं. ISS जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट सिमुलेटर होते हैं जो बेसिकली बेंचमार्क करते हैं किसी भी ISA को. ये सारे के सारे टूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको ₹1 पे नहीं करना पड़ता, बस यू शुड हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एंड विलिंग टू वर्क, राइट. हम बच्चों को MIT का कोर्स 6.004 जो कि YouTube पे अवेलेबल है, वहां से बच्चों को सिखाते हैं, उनको खुद भी पढ़ने के लिए देते हैं, DLT कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उनको, और पूरा प्रोसेसर पहले हम
किसी लैंग्वेज में सिखाएं, हम पहले उनको बच्चों को कहते हैं कि वो लॉजिसिम यूज करें। तो लॉजिसिम बेसिकली एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, ताकि बच्चे के पास ये परेशानी ना हो कि मुझे 2 चीजें सीखनी है, मैंने लैंग्वेज भी सीखनी है जैसे वेरिलॉग और प्रोसेसर भी बनाना है। तो बच्चे की जब ध्यान बढ़ जाता है तो वो दोनों काम नहीं कर पाता, दोनों काम आधे आधे हाफ को करता है और वो कुछ डेवलप नहीं कर पाता। तो हमने क्या किया, हमने बच्चे को बोला कि आपको लैंग्वेज की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन एन आर्किटेक्चर। तो वो लॉजिसिम में ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेट्स वगैरह चीजें वगैरह ड्रॉप करते हैं और उससे जो आर्किटेक्चर की बेसिक है वो बनाते हैं। तो उनको आर्किटेक्चर पूरा हिफ्स हो जाता है, याद हो जाता है, क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ था, राइट। और देन आफ्टर डूइंग दैट हम उनको लेके जाते हैं उनकी पसंद की लैंग्वेज पे, जो कि चिजल होती है, या फिर उनकी मर्जी है वो सिस्टम वेरिलॉग पे करना चाहें तो करें। एंड देन फिर हम इसको बेसिक आर्किटेक्चर सिखाने के बाद वी गो विद द बेसिक सिंटैक्स ऑफ चिजल, और इफ दे वांट टू डू अ सिस्टम वेरिलॉग, इसके हमारे पास 2 हैं। एंड देन हम वेरिफिकेशन करते हैं सिमुलेशन पे उस चिजल कोड। आगे कीजिएगा बेटा, निशान आगे कीजिए। सो वी गॉट एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हमने शुरू में 12 स्टूडेंट्स लिए सेकंड सेमेस्टर के फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ पे गिटहब पे आप जाकर देख सकते हैं इनके सारे के आउटपुट्स। बच्चों ने सारे आर्बिट्रेट टू आई सेकंड सेमेस्टर में ही बना ली थी। बट आगे करिए। सो ये बेसिकली लॉजिसिम का आउटपुट है। ये सैयदा फिजा जाफरी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उस वक्त, अभी माशाल्लाह 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है और हमारे साथ ही काम कर रही हैं। और ये बेसिकली सारा लॉजिक आर्किटेक्चर समझ के उन्होंने खुद बनाया। तो बेसिकली ये इसका हमें फायदा हुआ। बेटा कीजिएगा। सो ये हमारा आउटकम था और ये उसको हमने क्रिएट किया। ये पीछे आगे करें बेटा। सो बेसिकली वी हैव ऑल दिस कोर्स, ये सारी कोर्स सारी की सारी हमारे बच्चों ने बनाई हैं जो सेकंड सेमेस्टर में काम करते थे, और अपनी मर्जी के नाम रखे हैं इन्होंने। किसी ने मिराज रखा है, किसी ने गौरी रखा है, और ये सब गिटहब पे अवेलेबल है। आप आगे जाइए बेटा। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि बच्चों ने जब ये लॉजिसिम पे ये काम कर लिया, नाउ दे कैन गो टू द चिजल और सिस्टम वेरिलॉग। हम चिजल देते हैं, और चिजल बेसिकली जैसे अभी दिशा ने पिछली स्लाइड्स में भी बताया, चिजल विल जनरेट अ वेरिलॉग, राइट। चिजल जब वेरिलॉग जनरेट करता है, उस वेरिलॉग को आप उठाएं और किसी भी टूल से, जो भी विवाडो से या किसी भी Xilinx के टूल से या किसी भी टूल से, FPGA के जो भी टूल है उसमें वो डालें और वो प्रोसेसर चलना शुरू कर देगा। तो बेसिकली क्या किया हुआ है, ये बेसिकली arbitrary कोड है, जो बेसिकली जिसमें कोई सीक का कोड है फिबोनाची सीरीज का, राइट। वो फिबोनाची सीरीज का GCC कंपाइलर से होता हुआ हेक्स होता हुआ बाइनरी इस FPGA की जो ब्लॉक रैम है उसके अंदर सेव हुआ हुआ है, और पूरा इस ब्लॉक रैम के साथ इसका पूरा डाटा पाथ है, यानी कि पूरा प्रोसेसर है जो इस FPGA के अंदर है, जो वेरिलॉग से जनरेट हुआ है, और यहाँ पे फिबोनाची सीरीज चल रही है, राइट। ये मेरी पोस्ट का लिंक है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो चलती हुई नजर भी आएगी, राइट। आगे चलिए बेटा। सेकंड स्टेप होता है, हम उसको उन बच्चों को पाइपलाइन की तरफ लेके जाते हैं। अब ये हादिर खान है, ये भी हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, हमारी पहली हायर थी बेसिकली। और देन इन्होंने बेसिकली फिर जब सिंगल साइकिल कंप्लीट कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया, देन दे कम टू द pipeline architecture. Yes, sir. Quick question. Yeah. So these cores that you put there, you know, we have this thing called Exchange on RISC-V.org, and I recommend that you publish them there, and then everybody can know where to get them. We support chips, boards, software, and services there, and it's free. The publication's free. So it's very exciting you're doing this. I just want to make sure as many people know as possible. Okay, Mark, thank you. I think we should do that. And also, Zishan is here, and he's also an ambassador, so maybe we will use him for that, right? Thank you, Mark. Thank you. Sure. So this is, so actually I don't know, there's an international guys are there, so I may switch to the English so that everybody can understand. So actually no, it's okay. Hey, continue not in English. I'm watching the slides. I get a lot out of that. If I have questions I'll ask later, but continue. Thank you. Thank you. Okay, ठीक है जी। तो बेसिकली तो हमारे पास ये पाइपलाइन कोर होती है, 5 स्टेज पाइपलाइन है जो बेसिकली मेथड्स है। तो ये बच्चा जो है मोहम्मद हादिर खान, उसने डेवलप की थी। एंड देन आगे करना बेटा। देन व्हाट वी डू के हमने इसको FPGA पे इम्प्लीमेंट किया, चलाया, और उसके बाद ये गूगल ने एक प्रोग्राम निकालता है eFabless का। बेसिकली गूगल ने प्रोग्राम निकालता जिसमें गूगल स्पॉन्सर कर रहा था ओपन सोर्स चिप्स को, राइट। तो उन्होंने बेसिकली एक ओपन MPW शेडर प्रोग्राम बनाया, जिसका पर्पस बेसिकली ये था कि जो भी ओपन सोर्स डिजाइन है, जो ओपन सोर्स टूल चेन से बने होते हैं, तो उनको स्पॉन्सर किया जाए। तो 130 नैनोमीटर पे eFabless ने और गूगल ने स्पॉन्सर किया था। आगे चलिएगा बेटा।
तो जिस इसमें हमने हमारी जो 2 एसओसीज हैं, एक गाजी एसओसी और एक इब्तिदा एसओसी, ये दोनों एसओसी हमने इसमें बेसिकली डाली हैं, दोनों माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये बच्चा वही है जो हादिर खान, जिसने बेसिकली इस जर्नी को पूरा कंप्लीट किया। तो हादिर खान इज वन ऑफ द स्टूडेंट एंड ब्राइट स्टूडेंट जो बेसिकली इसमें भी आया और उसने बेसिकली पूरा जीडीएस वाला पोर्शन भी किया। तो बेसिकली हमने काम क्या किया, हमने बेसिकली इसको उठाया, सिमुलेशन से स्टार्ट किया, लॉजिज्म से, देन वी गो टू द वेरिफिकेशन और एफपीजीए इमुलेशन। एंड एफपीजीए से इमुलेशन करने के बाद इसको एक टूल होता है ओपन लेन के नाम से, जो आरटीएल से कन्वर्ट कर देता है जीडीएस, राइट। तो बेसिकली आरटीएल टू जीडीएस कन्वर्जन करता है। वो जीडीएस कन्वर्जन करने के बाद आप उसको जीडीएस पे यानी कि चिप लेवल पे उसको ले जाते हो, राइट। आगे चलिएगा बेटा। ये गाजी एसओसी है जो बेसिकली सिस्टम वेरिलॉग में रखी हुई है। ये हमारे बच्चे हैं जैन, उन्होंने बनाई है, राइट। तो गाजी एसओसी का बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है और इसके अंदर एक बुराक कोर है जो आर्बिट्रेटेड टू आईएमसी सपोर्ट करती है। सो एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और सी का मतलब है कंप्रेस। और ये सिस्टम वेरिलॉग पे रखी हुई है, इसको हमने वेरिलेटर पे सिमुलेट किया हुआ है, इसको इमुलेट कर चुके हैं हम RT7 FPGA पे। इसको हमने GDS जनरेट किया है, इसका ओपन लेन के थ्रू। ये बेसिकली RTL इनपुट लेता है, GDS कंप्लीट करता है और देन वी पुट इट टू स्काई 113 नैनोमीटर PDK। ये फ्री PDK हैं जो भी eFabless और गूगल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देन दिस इज द चिप टेप आउट। इंशाल्लाह जब ये अभी फैब्रिकेशन से होके आएगी इंशाल्लाह, दिस विल बी द फर्स्ट SoC which is basically using open source toolchain in Pakistan इंशाल्लाह। आगे चीजें। सो ये इसका ये URL था और अब उसको क्लिक करके उसको यूजर भी कर सकते हैं। सो दिस इज सेकंड इब्तिदा SoC। ये बेसिकली चिजल में लिखी हुई है और ये भी सिमुलेट हुई है वेरिलेटर पे। RT7 FPGA इसको हमने इमुलेट किया हुआ है, GDS जनरेटेड थ्रू ओपन लेन, स्काई 113 मीटर की PDK यूज करते हैं। तो ये इसके अंदर भी बुराक आर्बिट्रेटेड टू IM यूज किया है हमने। सो बेसिकली ये SoC भी हम यूज कर रहे हैं और बेसिकली ये भी इज अ पार्ट ऑफ शटल प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह ये भी SoC हमारे पास बन के आएगा, तो इंशाल्लाह विल शेयर द आउटपुट कि हम कहाँ से। तो बेसिकली जर्नी वही थी हमारी। वी स्टार्टेड अर्ली विद द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट एंड देन इसमें बहुत से लोगों का काम है, एक बंदे का काम नहीं है। बेसिकली ये डिजाइन किया था उन बच्चों ने, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कुछ बच्चे हैं जैसे जो बेसिकली जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उसमें एरीन है और उसमें हमजा है, उसमें वजी हैं और जिशान भी इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत सारे अंडर के जो बच्चे हैं। और इनको लीड किया था डॉक्टर रूमी नकवी ने और उनको मैंने भी थोड़ा बहुत इनको मैनेज किया। सो बेसिकली इज ऑल कंबाइंड टीम एफर्ट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सम अदर स्टूडेंट एज वेल। सो बेसिकली फिर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बेटा आगे करना। तो ये ओपन सोर्स बैकएंड टूल है जो ऑटोमेटेड RTL से GDS से कन्वर्ट करता है। उसके अंदर ये सारे टूल्स इंटीग्रेटेड है, सारे ओपन सोर्स टूल हैं, एंड यू कैन यूज इट। आगे चलिएगा बेटा। ठीक है, ये टूल चेन फ्लो है, राइट। ये आपका डिजाइन जो RTL डिजाइन होता है वो लेता है और उसको बेसिकली इस पास से गुजारता है। ये ओपन रोड फ्लो है इनका, जिसमें फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट और सारी चीजें होती हैं। एंड देन ये लॉजिक इक्विवेलेंसी से चेक होता है, योसिस से सिंथेसाइज होता है, राइट। एंड देन इट्स कम टू द GDS, राइट। आगे चलिएगा बेटा। सो ये कंट्रीब्यूशन थी बेसिकली, हमने ओपन सोर्स जो आउटपुट निकाले, राइट। और एक और हमने बेसिकली काम किया जो बेसिकली हम अभी वांट टू वर्क ऑन दिस रॉकेट चिप जनरेटर। जैसे कि जिशान ने बताया कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, राइट। सो उसको समझना मुश्किल है, यानी इसको रीयूज करना बहुत मुश्किल है। तो रॉकेट चिप जनरेटर का मतलब यह है कि यू कैन create your own chip without writing so many code, right? Basically आप agile methodology use करके सिर्फ पैरामीटराइज करके उसको यूज कर सकते हो, राइट। सो हमारे इंजीनियर फरहान अहमद करीम जो बेसिकली फैकल्टी मेंबर है, डॉक्टर रूमी नकवी जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये लेट किया है और बेसिकली ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों का था। तो RISC-V समिट जो होती हुई थी 2020 में, उसमें हमने प्रेजेंट किया हुआ था और हमने इसकी माइक्रो आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन भी बनाई। बेटा आगे चलिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये आगाज द SoC द बिगिनिंग। कोई सवाल है सर? जी मैं ये कह रहा था, आप ये हार्डवेयर वेरिफिकेशन के लिए कौन से टूल्स यूज करें? अच्छा सर, अभी जो हमने वेरिफिकेशन की है वो तो टेस्ट बेंच बेस की है, जो कि ज़्यादा इतनी ऑप्टिमम नहीं होती। टेस्ट बेंच बेस में ज़ाहिर सी बात आपको बार बार टेस्ट बेंच लिखनी पड़ती है, कुछ डिज़ाइन चेंज होता है दोबारा टेस्ट बेंच लिखनी पड़ती है। वो किया है हमने वेरिलेटर पे। और दूसरा हमने FPGA इमुलेशन की है, उसके ऊपर हमने GCC से बहुत सारे रेगुलेशन टेस्टिंग की है, बहुत सारे कोड्स यूज़ किए हैं, कुछ ओपन सोर्स लाइब्रेरी थी वो यूज़ की है टेस्टिंग के लिए। नाउ गुड थिंग इज दैट देयर इज अ टूल। जी सर,
So good thing is that there is a tool called CocoDB. CocoDB is basically क्या करता है, आपको Python based जो है वो UVM 1.2 की specification दे देता है. So you can use that tool as well, right? Zishan, अपना mic mute कर दोगे बेटा? इसमें कोई फॉर्मल वेरिफिकेशन वगैरह टूल्स यूज करते हैं? बिल्कुल सर, इसमें बेसिकली लॉजिकल इक्विवेलेंसी चेक होते हैं. बेसिकली वो आप यूज कर सकते हैं. RISC-V फॉर्मल एक बेसिकली ओपन सोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसके लिए हमने जो यूज किया था वो बेसिकली FPGA इमुलेशन यूज किया. ठीक है, थैंक यू. So Agaz is basically we think that we are on the edge of the using or creating a SOC generator जिसमें आपको बहुत कम कोड लिखना पड़े और आप अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करें, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आप यूज करते हैं कि आप किसी की लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं, देन इट्स ओके टू गो, राइट, विद वेरिफिकेशन एज वेल. सो बेसिकली उस चीज को हम काम कर रहे थे जो हमारा काम एक्सेप्ट हो, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हैज बीन डन by the undergraduate students of Smart Zero Technology, जो बेसिकली इस फर्स्ट सेमेस्टर में. आगे चलिएगा बेटा. सो हमने एक मैक्रो आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन निकाली है कि बेसिकली वो क्या क्या यूज कर रहा है बैकएंड पे और किस तरीके से आप उसको पैरामीटराइज कर सकते हैं कि 32 बिट के आर्किटेक्चर को किस तरह 64 बिट करना है, उसके अंदर किस तरीके से आपको कैशे की जो मेमोरी हायरार्की है आपकी पूरी, उसको कैसे चेंज करना है. अगर कैशे नहीं यूज करनी है, स्क्रैच पैड यूज करनी है तो कैसे करनी है. ALU में FPU यूज करना है, फ्लोटिंग पॉइंट यूज करना है तो F एक्सप्रेशन यूज करनी है तो कैसे करनी है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट यूज करनी है तो कैसे करनी है, without writing so much of the code using the libraries, right? So we are working on that, right? This is the work in progress. Already बहुत सारा काम इसमें हो चुका है. We are verifying internally as well, and then inshallah we will publish to the people as well. आगे चलिएगा बेटा. So these are the things जिसमें आप पैरामीटर्स होते हैं, डाटा कैश पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स आप चेंज करें, यू आर गुड टू गो विद द वेरिलॉग कोड. आगे चलिएगा. सारा चिज़ल में लिखा हुआ है. सो जो वर्चुअल समिट थी, पाकिस्तान से 2 कंट्रीब्यूशन थी. एक मॉडल UIT की जो रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ रॉकेट चिप, और दूसरी लैम्प्रो मेलन की थी जिन्होंने ओपन सोर्स सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेटिंग डिजाइन एंड वेरिफिकेशन ऑफ RISC-V प्रोसेसर किया था. सो बेसिकली दैट्स अनदर वर्क व्हिच वी हैव डन एक्चुअली. आगे चलिएगा. ये हमारा एक सूट है, ये भी हमारे अंडरग्रेजुएट बच्चों ने बनाया है, जो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन रिग्रेशन टेस्ट हम जनरेट करते हैं. तो हम C में कोड करते हैं, जो उसकी असेंबली जनरेट करते हैं, एंड देन दैट असेंबली इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी, एंड दैट बाइनरी विल बी लोडेड इनटू द इंस्ट्रक्शन मेमोरी और स्क्रैच पैड मेमोरी ऑफ आवर प्रोसेसर. और इसमें आगे चलिएगा बेटा. इसमें हम एक और काम करते हैं कि जितनी भी ओपन सोर्स कोड्स अवेलेबल हैं, आपको पता है RISC-V की बहुत सारी ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं. आप चिज़ल की वाली कोड भी यूज कर सकते हैं, वेरिलॉग भी, उस कोड का पूरा कोड यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड देन यहीं से आप क्लिक करके इसका वेरिलॉग जनरेट कर सकते हैं और देन यूज इट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस एज वेल. सो बेसिकली आप ये काम पूरा का पूरा इस पूरी आईडी में करना है. दिस इज आल्सो वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो दिस इज बेसिकली अ सूट व्हिच अलाउ यू टू यूज एनी ओपन सोर्स कोड and then augment it, add it, change it, verify it, regression test it, and then go for soft core for FPGA as well as from RTL to GDS for the ASIC implementation as well if there is a free PDK available. आगे चलिएगा बेटा. ये हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बच्चों का स्टूडेंट था CS का, जिन्होंने बेसिकली बुराक और RISC-V सिमुलेटर बनाया था फॉर अस. सो बेसिकली ISS बनाया था जो RBT32IM को सपोर्ट करता था, जिसमें रजिस्टर और मेमोरी लेवल, यानी कि आप असेंबली में कोड लिखेंगे तो उसका आपको बिट लेवल में पता जाएगा कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है. तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था, और हम अपने जो इंटरनल काम है उसको यूज करने के लिए भी इसको यूज करते हैं. आगे चलिए बेटा. सो जिशान को पता है कि पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर हैं जो बेसिकली RISC-V के हैं, और उनका पर्पस यही है कि इकोसिस्टम क्रिएट करें और इस तरह की टॉक्स जनरेट करें और बनाएं. So basically that's why we are here as well. So thank you Zishan for that. आगे चलिए. कराची RISC-V ग्रुप है because we belong to कराची. So basically RISC-V की methodology है कि जिस शहर में आप होते हैं वहाँ का RISC-V ग्रुप बना सकते हैं. तो Zishan being an ambassador and living in Karachi, so he created a RISC-V group. He will help you guys to create your own group as well, right? आगे चलिए बेटा. Sci-Fi की टीम विजिट किया था उसने UIT इनिशियली जब हम स्टार्ट कर रहे थे. We started with Andrew Waterman thesis. So basically Andrew Waterman thesis हमने जो है वो basically RISC-V की जो स्पेसिफिकेशन है वो basically Andrew Waterman का thesis है. So basically हम उस पे काम कर रहे थे. Then ये Yunsook Lee जो basically बिल्कुल मिडिल में है,
he's basically one of the inventor of RISC-V. So he visited us, and then he was very happy. He also mentioned us in his talk in RISC-V Summit 2019. In 2020, we actually presented in that same summit, but 2019 में हम कुछ भी नहीं था, so start था, तो they visited us, and that it gives us a very good boost. और उन्होंने काफी चीजें हमें सिखाई समझाई थोड़े से टूर में. So is wonderful for us, and बहुत अच्छे human being है और बहुत support किया. Ravi Sherwani साथ में, he's also one of the role model for all of us, one of the chip design veteran guru in the world. So basically very good man as well. So basically ये आए थे और उन्होंने काफी boost किया. आगे चलिए बेटा. So अभी तक हमने क्या कर लिया है 1.5 साल के अरसे में. We are the member of RISC-V, alhamdulillah. We are also the member of CHIPS Alliance. CHIPS Alliance में बहुत सारी membership है, जिसमें Intel भी है, Samsung भी है, Sci-Fi भी है और बड़ी-बड़ी companies हैं. So we are also part of it. We are associate member of CHIPS Alliance. We also signed an NDA with the TSMC. So because of अगर आपको close nature of work करना है in education environment, we need TSMC. So basically अभी हमने open source PDK use किए थे, then we will come to the closed source PDK for the for other things as well, right? आगे चलिए बेटा. So that's what our finding of 1 year and 1.5 year learning. Exciting time for Pakistan to contribute in the semiconductor industry. और industry को start करने के लिए start academia से ही होता है. Because अगर if we produce a very good human resource out of the university, naturally industry come to you. So असल में प्रॉब्लम ये है कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम. हम कहते हैं इंडस्ट्री नहीं है, वो कहते हैं कि बच्चे ही नहीं अच्छे, यानी काम ही नहीं है. So आप काम करेंगे, दुनिया को शो करेंगे, दुनिया की कंपनीज आपके पास ऑलरेडी आएंगी. Being in this time, there is a company called Sahil Semiconductor which come in Karachi as well. I used to be their consultant initially. So they are also semiconductor guys. So they are working on high-speed network interface card. So because we show some work, they think that there is a talent, and most of our students are working there, right? So basically इसी तरीके से इंडस्ट्री आती है, आप बच्चे जनरेट करते हैं, इंडस्ट्री आती है. Lamper Melon is an example. तो Lamper Melon तो इंडस्ट्री लेके भी आए और बच्चे भी जनरेट करें, तो दोनों काम कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक एकेडमिया और इंडस्ट्री को मिलकर ही काम करना पड़ेगा. और ये ऐसी बैंड वैगन है, अगर हम इस पर चढ़ गए, आई मस्ट से कि 10 साल का टाइम होगा था. आई थिंक इफ वी आर देयर, हम कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लेंगे, राइट? क्योंकि बहुत ओपन एरियाज हैं. वी कैन क्रिएट मैनी थिंग, राइट? So if you can't create or you can't make your own processor, you can't do anything, right? खुदा ना कभी भी radar बन जाए, कुछ हो जाए, you don't know, right? So RISC-V give you control, it gives you innovation, it cuts the cost, it gives you security, right? You know it's reliable, it's from your side, right? So it also create a very sustainable ecosystem in the commercial market as well, right? So mission critical strategy organization के लिए बहुत important है. So don't rely on others, create your own future. You should know that Huawei incident, और इसी वजह से आपको पता है कि जो प्रीमियम मेंबरशिप है RISC-V की, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चाइना की है. China is shifting towards the open source hardware, and industry is actually shifting towards the open source hardware. So very exciting time to work in the academia and industry as well. आगे चलिए बेटा. So let's build our own future. बेटा next click करिएगा. Together we can, together we will, inshallah ta'ala. So that's all from my side. If you have any questions, please do ask me. Thank you. Well, I am Shahid Hamid. Sir. I'm a 69 vintage engineer, slide rule engineer. So whatever that you talked, they were beyond me. Nevertheless, I try to keep abreast. MashaAllah, you guys have done wonderfully well. Whatever that you're doing, I think is admirable. As a matter of fact, एक आपके जो शिरानी साहब है, शिरानी साहब, we had a talk from him also, and I think Salman, are you there? Salman? Salman is not there, but sir, he's there, but I think his mic is off. Yes, sir. Go ahead. I'm here. Yeah, well, Salman, ये हमने जो शिरानी साहब को भी कहा था, अब these two young people, Ali and Zishan, I think we need to extend more
from kind of a, जिसको कहते हैं ना, head of collaboration from College of Aeronautical Engineering Professionals, CAPS. So sir. Salman, I think we should start something with these gentlemen, and they're doing wonderfully well. I'm sure इसको थोड़ा सा we will like to sort of expand the activities and join hands with them if it's possible. And I'm really impressed by what was presented today. So keep it up. There's a good job being done, mashallah. Sir, Copied, sir, copied. Sir, we can Sir, extend them honorary membership. Yeah. We will do that. Yeah, Manzar, I'll get back to you, Manzar, on this. Yeah. Thank you, sir. It's a really team effort, and a special praise goes to Dr. Rumi Naqvi, who actually gives us the opportunity to do that. And thank you, sir. बिल्कुल मैं आपके उनसे भी बात करवाऊंगा. So he's the right guy to work with. Yes, thank you very much. Please do that. We would like to have a talk from Dr. Rumi as well. Thank you. Sure. Thank you. Dr. Ali, an excellent presentation. Thanks, sir. This is Salim Rahman. डॉक्टर ली मेरा नाम सलाउद्दीन है समकन फिकान सर मेरा क्वेश्चन ये है कि RISC-V प्रोसेसर में बहुत I mean there are so many guys that are working, but when I see on the single board computer side I hardly find any example, any good example जिस तरह Raspberry Pi की हमारे पास there are I mean countless number of applications and versions and so many things available, big database. तो इसी तरह इसकी कोई एग्जांपल है गुड वर्किंग एग्जांपल जिस पे लिनक्स नॉर्मल लिनक्स आप चला सकें सिंगल बोर्ड still RISC-V is very new for that, you are right, but I must see after 10 years or maybe a 4 year or 5 years you will see a very good products and very good cost point, just like Raspberry Pi $35 का मिलता है, right? तो अभी मिलता है वो बेसिकली हाँ RB30 वो बेसिकली हाँ वो उसके वर्जन है, राइट? अभी तो उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर भी निकाला है छोटा सा, वो $2 का. तो बेसिकली यस वो डिफरेंट वर्जन है, वो 0 है शायद जिसकी आप बात कर रहे हैं जी. सो बिल्कुल अभी उस क्रॉस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है ये इकोनॉमिक्स है उसकी काउंट्स की कि जितने ज्यादा बोर्ड होंगे उतना सस्ता होगा, राइट? So Raspberry Pi की जगह Raspberry Pi by the way Raspberry Pi is a member of RISC-V as well. So maybe they are working on it in the back door. But हाँ Beagle board जो अभी शान ने बताया Beagle 5 के नाम से उन्होंने बोर्ड निकाला है, which is basically a RISC-V based Linux capable board. This is in the early stage for beta testing. ये अभी हमारे पास आने भी वाला है because we are doing beta testing of it. So इंशाल्लाह वो आएगा तो मैं बिल्कुल लिंक पे रहूंगा, आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं. Sure, thanks. तो अगर आप Google Summer of Code पे जाएं, Google Summer of Code, तो उसके अंदर बेसिकली Beagle 5 ने कुछ टास्क रखे हैं उसके अंदर ओपन सोर्स के लिए, ताकि कुछ लोग उनको हेल्प करें और स्टूडेंट्स हेल्प करें, राइट? गूगल समर ऑफ कोड उसको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कंपटीशन होता है जिसमें वो 3 महीने की इंटर्नशिप करता है घर बैठ के विद ओपन सोर्स डेवलपर्स, राइट? सो इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारी उनसे जान पहचान है थोड़ी बहुत थ्रू ज़ीशान. सो बेसिकली दे आर गिविंग अस सम बोर्ड्स फॉर बीटा टेस्टिंग. तो इंशाल्लाह मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे उसको शेयर करता हूँ. बट स्टिल आई एम सीइंग 2 to 3 years, I think maybe 4 years, you will see RISC-V capable Linux capable boards. Even you can see mobile phone as well, right? Yeah, definitely. Yeah. Thank you. Ghayas, you can go ahead. जी sir, thank you sir. Assalamu alaikum Dr. Ali, my name is Ghayasuddin. Sir, I'm currently working as a professor at Institute of Space Technology. Sir, and have some background in VLSI designing and fabrication as well. Awesome, sir. I'm very glad, first of all, for the work and the motivation, particularly as you have mentioned that your students are there for non-graded courses and they are doing it for their with their own passion. That's really brilliant, something which is usually not seen in Pakistan, unfortunately. So I have some suggestions or maybe some questions, like
currently you are doing all of it on open source tools and open source PDKs. So Yes. how much would be helpful to bring this to commercial tools like Cadence or Mentor Graphics Suite with some commercially licensed PDKs? As you have already mentioned that you have signed NDA with TSMC. So how much would be that helpful, or you intend to stay on the open source side? So we will work on two sides, right? So we use the open source as well, and also the closed source as well. But because we vision it that maybe after 3 to 4 years, the open source tool may be capable or maybe very close to the closed source tools, because you see that proliferation is already there. Why? You can see that. For example, these Cadence और ये सारी जो कंपनी है, Synopsys है, सारी कंपनियां इसको यूएस कंट्रोल करता, राइट? और चाइना काम नहीं कर सकता उनके साथ, राइट? बिकॉज आपको पता हवावे का इंसिडेंट हो गया है. तो देयर इज अ नीड इन ओपन सोर्स टूल, राइट? तो चाइना वुड वर्क ऑन देयर ओन ईडीए टूल एज वेल, और मे बी दे आर वर्किंग ऑन ओपन सोर्स टूल एज वेल. और फ्यूचर में ओपन सोर्स टूल पे फंडिंग भी होंगी, चीजें भी होंगी, तो हम उस पाथ पे भी रहना चाहते हैं, राइट? एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ट्रेड थिंग्स लाइक दिस, आपको पता है बहुत सारी चीजें अलाउ नहीं होती हैं आपको बिकॉज ऑफ द लॉज इन फॉरेन कंट्रीज. सो बहुत सारी चीजें आपको अलाउ भी नहीं होती. तो एक तो ये वजह है, राइट? और सेकंड जो वजह है आपका केडेंस का सॉफ्टवेयर का, तो यस, जो हम बेसिकली वी आर स्टूडेंट, एक्चुअली वी ऑल आर स्टूडेंट एंड वी यूज इट फॉर स्टूडेंट पर्पस बिकॉज ऑफ द टीचिंग एंड थिंग लाइक दिस. सो हमारा अभी कमर्शियल का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं ना रखते हैं. हमारा बेसिक काम है एक्चुअली वी वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, राइट? टू क्रिएट अ गुड ह्यूमन रिसोर्स कि वो जब निकले ना तो उनकी जो तनख्वाह है वो 12,000 या फ्री में नहीं काम करें, वो जाए तो 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो दुनिया में सैलरी है, राइट? तो एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स निकाल के भेजें. 1-2 साइकिल हमने इस तरह निकाल दिए, इंडस्ट्री खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी. तो दैट्स व्हाट आवर पर्पस. सो वी आर नॉन कमर्शियल एंटिटी, वी आर डूइंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, वी वर्क ऑन डोनेशन. हम डोनेशन पे चलते हैं. तो अभी तक इज गोइंग वेल. 1 से 1.5 साल तक अब देखते हैं. अगर हमें सस्टेनेबल कभी करना पड़ा देन वी विल वर्क ऑन ग्रांट लाइक दिस. यस, बट दैट्स व्हाट आई सी. सो यस, हमारे पास केडेंस की लाइसेंस की हमने रिक्वेस्ट दी भी, हम स्टूडेंट्स को उस पर भी ट्रेन कर रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्री में नीड उस टूल्स की हैं जैसे केडेंस का आप बता रहे हैं. तो ऑलरेडी केडेंस लाइसेंस हमने ऑर्डर किए हुए हैं, इट विल कम इंशाल्लाह ताला. सो वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ दैट एज वेल. दैट्स व्हाई हमने टीएसएमसी के साथ एनडीए साइन किया. सर मैं थोड़ा सा हाउस को अपडेट कर दूं. आफ्टर दी नवीद शेरवानी, सो आफ्टर नवीद शेरवानी's presentation, I did my humble effort to convince number of universities in Pindi, Islamabad, like Ghayas is from IST, where the Vice Chancellor Major General Rehan Baki, he was very nice, he listened to me. And there is Mr. Waheed in Grafton University, and in the case some Dr. Umar is there. So they all were interested to join hands, but how to approach, and there are so many number of questions and queries. That's why I requested Dr. Ali Ahmad and the Zishan, because they are already through. So I think it would be more beneficial to all of them. सर भैया सब कुछ पूछ रहे थे. थैंक यू सर. मतलब सुना सभी. जी सर, सॉरी आवाज गयास, गो अहेड. गयास आप सवाल पूछ रहे थे. जी अच्छा, ठीक है जी सर. वो उसमें तो मैं सर एक तो ये कह रहा था कि आई सी एन अपॉर्चुनिटी हियर के वी गॉट लाइसेंस ऑफ गाइडेंस डिजाइन एंड सेटअप है. इसके अलावा इस्लामाबाद में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेरा लिंक है, जहाँ पे मेंटर ग्राफिक्स के टूल्स एंड एनवायरनमेंट बिल्कुल सेटअप है. वी गॉट एनडीए विद टीएसएमसी एंड सम अदर अमेरिकन कंपनीज एज वेल. तो अगर मिल के काम कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर ट्रली विलिंग हो. बिल्कुल बिल्कुल. मैं डॉक्टर रूमी होते हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करके आपसे बिल्कुल डिस्कस करता हूँ. Yes, why not we should shake hands and we can do the Islamabad chapter.
कयास? जी सर, श्योर वी कैन। जी आपके सर, पास जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आप लोगों के पास ये है, वी कैन टॉक टू द वीसी एंड वी शुड टेक द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामाबाद चैप्टर एंड गो अहेड विद द सीईपी फोरम. जी डॉक्टर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल वी कैन डू इट. और उसमें डॉक्टर अली से मेरा क्वेश्चन है कि एक चीज जो अभी मुझे प्रॉब्लम नजर आता है ना, क्या आप लोग सुन सकते हैं मुझे? जी आवाज आ रही है सर, बोले. जी, अभी जो एक प्रॉब्लम नजर आता है जब मैं अपनी फैकल्टी से बात करता हूँ, इनफैक्ट जो कुछ आप कर रहे हैं वो सारा कुछ हम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वी आर डूइंग इट फॉर इधर आर्म और x86. वो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड है, वी आर गोइंग डूइंग दैट. ठीक है. जब मैं बात करता हूँ अपनी फैकल्टी से, अपने कोलीग से, वी शुड गो फॉर RISC-V, तो देयर इज सम लैक ऑफ विलिंगनेस टू माइग्रेट टुवर्ड्स दिस थिंग. इसको मिटिगेट करने के लिए, मतलब उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या किया जाए कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पहला काम अवेयरनेस है सर. फैकल्टी और स्टूडेंट्स है. पहला काम अवेयरनेस है, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, राइट. तो RISC-V के फोरम से बेसिकली हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और काम भी हम ये कर रहे हैं. तो बेसिकली अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जाहिर सी बात है, हर चीज पे आपको ना, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, यूनिक कोई चीज होनी चाहिए. आम में और x86 में आप करेंगे तो आपके पास क्या यूनिकनेस नहीं, राइट. सो आप उस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं. और अवेयरनेस टॉक्स करवाएं, बुलाएं, लोगों से बात जो कर रहे हैं काम, लैम्प्रो मैलन से करवाएं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. हमारे वहाँ पे किक्स लाहौर है, वहाँ से आप लोग बुलाएं. DH सोफा है, वहाँ से लोग बुलाएं, हमें बुलाएं, हम फारिग हैं. जब बोलेंगे हम आपके लिए फारिग हो जाएंगे, कोई मसला की बात नहीं, हमें बुलाएं. और we can collaborate as well, we can work as well, we can write joint grants as well, we can write grants. असल में हमारा पर्पस ही डिफरेंट है. वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट. We are actually enabling students, right? So basically, that's our purpose. Our vision is to create an semiconductor ecosystem in Pakistan. Yes, sustainability is required. That's बात आपको पैसे पे भी करने हैं किसी को, दोनों आप जिंदगी भर नहीं चल सकते, right? So maybe there comes something, right? जी डॉक्टर अली, may I add something? जी बिल्कुल सर. जी डॉक्टर अली, जैसे मैंने बताया था, मैं नस से हूँ एंड द अदर फैकल्टी मेंबर्स आल्सो वर्किंग in the RISC-V area, and we have a RISC-V lab set up, one of our faculty members. So definitely जिस तरह माशाल्लाह आपने encourage किया है collaboration का, तो we can always mutually work and come out with good collaborations. Sure, why not? Understand between the faculty and between the students also, because I mean our syllabus curriculum is aligned towards all this. We start with digital logic design, and then we go for digital system design, where we teach in detail the complex design using Verilog, and then computer architecture and all other courses. I really appreciate the progress you have done in a very short time, and we can really want to benefit from your experience. Thank you very much. Inshallah, why not? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Dr. Ali, is it possible that like IST and other universities are being, because they do have certain strong areas in their faculties where if given some projects, they can show some progress through faculty, and simultaneously they can train the students also? Yes, there are a lot of gaps. There are a lot of requirement in RISC-V development, right? अभी पहली दफा Android port हुई है RISC-V पे, मतलब बहुत opportunity है. So anybody can come and solve any single problem, and then this will be the issue. जो अभी Zishan है, इनका जो FYP है, ये FYP इनका tape out है. They have to create a 32-bit processor with some SoCs, with some peripherals attached, right? So इनका अब हमने FYP बच्चों को चेंज करना है, चीजें चेंज करनी है, लेकिन कब करेंगे? जब आप इनिशियल स्टेजेस में चीजों को चेंज करेंगे.
सो इज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। आपको इनिशियली से अब करिकुलम चेंज करने की करने में मुश्किल होती है, राइट? बहुत सारी फैकल्टी मेंबर नहीं चाहते करिकुलम चेंज। पता है ह्यूमन जो है वो रेजिस्टेंट टू चेंज है, नहीं करता। तो यू हैव टू ड्राइव, यू हैव टू प्रूव यू आर राइट, देन पीपल विल सी, एंड देन आहिस्ता 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 फिर वो देखते हैं कि चलो ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है, ये बच्चा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, एंड देन हियर कम द मोटिवेशन। दैट्स व्हाई वी है यार, इसीलिए ज़ीशान एम्बेसडर बना है RISC-V का, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस और उसने जो काम किया है, ही ट्रूली अर्न्ड दैट प्लेस। सो हम हैं आपके लिए हाजिर। आपको जिस कहीं कोलैबोरेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या हम मिलके कोई काम कर सकें। सारा काम मैं भी नहीं कर सकता, सारा काम ज़ीशान भी नहीं कर सकता, डॉक्टर रूमी भी नहीं कर सकते, सबको मिलके करना पड़ेगा। तो जब इकोसिस्टम क्रिएट होता है तो हर बंदे के एरिया ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरा मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, मैं SRAM पे काम करता हूँ, राइट? SRAM इज माय स्पेशलिटी, मेरा PhD नेटवर्क्स की मेमोरी है। तो बेसिकली आई कैन कंट्रीब्यूट अ बेटर इन दैट डोमेन, राइट? तो इस तरीके से सब अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, एंड देन वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। इंडिया में एक प्रोसेसर लाइन है जिसका नाम है शक्ति। शक्ति इज स्पॉन्सर्ड बाय वेरी गुड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, or they are giving a huge amount of money on that project, right? So they are making RISC-V processors for, I think, IIT Madras उसमें है, और अभी RISC-V के members में जाकर देखें तो they are there. So they are उन्होंने अपना national ISA बना दिया उसको, RISC-V को। They are working on it, और उन्होंने माशाल्लाह काफी टेप आउट भी कर लिया। So चीजें इवॉल्व हो रही हैं, you have to evolve quickly. So there is a thing कि आपको कंट्रोल चाहिए, you have to work with that. Yes. You want to give some good news that in April or May we want to have our own RISC-V processor? Inshallah, hopefully, but I don't know, because सारा वो ओपन सोर्स PDKs हैं, और ये पहली दफा दुनिया में कुछ 40 डिजाइन होंगे जो ओपन सोर्स टूल चेन से पूरी ओपन सोर्स टूल चेन से निकल के फैब्रिकेट हुए होंगे। वो PDKs कैसी हैं हमें नहीं पता, वो चीजें कैसी हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। इंशाल्लाह वी आर होपफुल दिस विल बी अ वेरी वर्केबल SoC, बट हमने उसमें सारा काम करके दे दिया है। दे आर फाइन विद दैट इंशाल्लाह। Dr. Ali, I have one question, if you allow me. Sir. हमें इसकी एनर्जी एफिशिएंसी तो मालूम है, because it is reduced section, तो it is consuming less energy. मुझे जरा इस पे थोड़ा सा एजुकेट प्लीज कीजिए, if you can, कि how do you compare the performance in terms of number of cycles, or when I say performance, I mean microsecond is a big number for me. I am talking about in nanoseconds. So when we talk about nanosecond, then how do you compare it with Intel and other processor? So RISC-V specification is not a micro architecture implementation. फर्क है दो चीजों में। स्पेसिफिकेशन बताती है कि क्या चीज करनी है आपने, राइट? अब कैसे करनी है ये डिपेंड करता है माइक्रो आर्किटेक्ट पे। जैसे मैं बोलूँ एक को भाई तुमने ये घर बनाना है, अब वो ईंटें दूसरी यूज कर ले उसके लिए, राइट? तो डिपेंड करता है, किसी ईंट से हीट ज्यादा आएगी, किसी से कम आएगी, ठीक है? कोई टीन की चादर से छत डाल देगा, कोई पक्की चादर डाल देगा, राइट? एक में कॉस्ट है, एक में, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रो आर्किटेक्चर। तो अगर आप बहुत छोटा टेक्नोलॉजी नोड यूज करेंगे, ठीक है, आप 65 नैनोमीटर से नीचे आ जाएंगे, 20 नैनोमीटर में आ जाएंगे, या 20s में आ जाएंगे, 10s में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका माइक्रो आर्किटेक्चर जो है वो पावर कंजम्पशन भी कम करेगा, और बहुत सारी चीजें उसमें और एफिशिएंसी भी इसमें आएंगी, राइट? तो इट डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इट डिपेंड ऑन द PDKs, इट डिपेंड ऑन द किस फाउंड्री पे आप कर रहे हैं, इट डिपेंड ऑन द माइक्रो आर्किटेक्चर। तो RISC-V स्पेसिफिकेशन, तो आप स्पेसिफिकेशन को कंपेयर नहीं कर सकते PPS पे, पावर परफॉर्मेंस एरियाज पे नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन को कर सकते हैं। अब हर बंदे की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है। अगर मुझे IoT नोड बनाना है पावर एफिशिएंट, तो मैं फिर उसी हिसाब से अपना हार्डवेयर रखूंगा मिनिमम, राइट? तो मैं बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर में ले जाऊंगा, SDKs में ले जाऊंगा, SDK को ऑप्टिमाइज करूंगा, राइट? तो आप दोनों तरफ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर में कंपाइलर साइड पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और हार्डवेयर साइड पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देयर इज अ होल ह्यूज वर्ल्ड अराउंड इट, राइट? So I want to add one thing here कि बेसिकली जो RISC-V का बेस ISA है RISC-V RV32i, तो वो तो बेस है। अदर देन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ उसके ऊपर, तो यू कैन क्रिएट योर ओन इंस्ट्रक्शंस एज वेल। आप अपनी इंस्ट्रक्शन भी बनाकर उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका अलग डेटा टाइप बना सकते हैं। RISC-V allows you. Right. And then another small question, which
bit, I mean, register architecture you're working on, 32-bit or 64-bit? अच्छा, हम दो जगहों पे काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन SOC जनरेटर्स जो कि पैरामीटराइज हैं. 32 बिट बनाएंगे तो 32 बिट बन जाएगी, 64 बोलेंगे 64 बन जाएगी. और सेकंडली वी आर वर्किंग ऑन IoT कोड which are 32 bits. So right now 32 bit, but it's a matter for a single line of code which make 32 or 64. So it's not a big thing. So right, it can be 128 as well. So सब सर्वर साइड पे भी काम कर सकते हैं. So RISC-V is modular or it allows you many more things. Even इस implementations के अंदर भी अगर आप कोई सिस्टम वेरिलॉग यूज करते हैं, चिजल यूज करते हैं, तो वो बड़ी पैरामीटराइज्ड हैं. So you can create. In fact, I remember reading somewhere के RISC-V का 128-bit प्रोसेसर भी आया है. I don't know. जी बिल्कुल. RISC-V के स्पेसिफिकेशन अलाउ करती है आपको 128-bit फॉर सर्वर्स एप्लीकेशन. क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है डाटा कितना हो रहा है, तो RISC-V की जो कंप्यूटर 128-bit के ऊपर भी काम करेगा. तो जो स्पेन में सुपर कंप्यूटर है बार्सिलोना में, तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन 128-bit. राइट. ओके. Good. If there is more questions, please, you're welcome to. Otherwise, we can end the session. अच्छा, इसके कोई आपके ग्रुप्स वगैरह हैं बने हुए टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पे, तो उसको if you can publicize them? अच्छा सर, आई थिंक ज़ीशान इसको आपको अच्छा बताता है बिकॉज ही इज अ RISC-V एम्बेसडर, राइट. सो आप कोई भी आपको प्रोपगेशन करनी है, कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो ज़ीशान इज अ हेल्पफुल गाय. ज़ीशान ग्रुप कोई है तो उसको शेयर कर दो सर के साथ. सर हमारे बेसिकली फेसबुक पे ग्रुप है, ओके, जो RISC-V कम्युनिटी के नाम से है, RISC-V कम्युनिटी पाकिस्तान. राइट. सो एक तो वो है, एक है RISC-V कम्युनिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर है. तो इधर चैट में आप शेयर कर लेंगे या बाद में भी whenever you feel like? यस सर, मंत्र के साथ शेयर कर दूंगा. यस सर, ठीक, शेयर कर दो, यहीं पे चैट पे शेयर कर दो, और आप वर्ल्ड की वेबसाइट भी शेयर कर दो. चलो अभी कर. Now I think if anybody does not have any questions, so should we conclude, or somebody has anything to clarify? अच्छा, पाकिस्तान में अभी किसी ने आपसे इंडस्ट्रियल उस पे कांटेक्ट किया कि इंडस्ट्रियल ग्रेड पे, इंडस्ट्रियल उस पे स्केल पे बनाने के लिए कुछ? जस्ट देयर आर इंटरेस्ट इंडस्ट्री में तो नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए है कुछ इंटरेस्ट लोगों को. But it's very encouraging, to be honest, talking in Pakistan on such very high tech topic itself is an achievement for me. Yeah. Thank you, sir. It is very. But basically, we were enthusiasts actually. हम हार्डवेयर चीजों पे वैसे enthusiast हैं, तो बच्चे भी हमारे, तो काम वैसे enthusiast से ही होता है, जो तनख्वाहदार हो तो उससे काम जरा कम ही होता है. ये समझने के लिए दुनिया में काम करते हैं. ये ऐसा ही है. तो we are trying, बस जाहिर सी बात है, डोनेशंस हैं, वो लोग हेल्प भी करते हैं. जी वेलकम. अब अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं तो सर शायद अगर आपकी इजाजत तो मैं इनको थैंक यू कर दूं. जी, प्लीज गो अहेड, एंड फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच ज़ीशान अली. As Sirajuddin said, पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं. अल्लाह ताला आप लोगों को अपने उसमें रखे. Carry on doing this good job. Thank you once again. Thank you everybody. Extremely thankful, Dr. Ali and ज़ीशान, honoring my request. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone. Inshallah, we remain in contact for further progress. Inshallah, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Excellent. Very nice. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Manzar, I'll get back to you now.